we have one more exciting journey to travel with someone who could be pronounced as a true science advocate. He has traveled almost the whole country except the Ladakh, awareing the general public towards the scientific approach in daily life. आज हमारे बीच हैं श्री संतोष टकले सर, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में सीनियर साइंटिस्ट हैं. अपार्ट फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज हाईली एक्टिव इन साइंस कम्युनिकेशन एंड यूथ एम्पावरमेंट. Sir aims to impart the scientific temperament to the masses, making them more practical in day-to-day lives. What is more inspiring is that he conducts free seminars, training sessions, and speeches which are open to all. Sir has delivered more than 25,000 free of cost lectures since 1997, which has benefited more than 9 lakhs of students, teachers, and general people. Universe, its beginning, constitution, and its nature, solar system, and make them easy to grasp for those who are beginners in these fields. सर को बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं और वो कई सारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के मेंबर भी हैं. उन्होंने टकले चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है और स्काई वॉचर्स एसोसिएशन ऑफ रायगढ़ के फाउंडर और काउंसलर भी हैं. Okay, that was a bit of descriptive information about him. It's time to join him and enjoy his talk. Please welcome Santosh sir. Good evening. I'm audible? Good evening, sir. You are audible. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you so much. It was really wonderful listening to all of you, especially students. Obviously, it's not to demean anybody. Really, there was wonderful insights given by Anand Kumar sir, and obviously Dr. H.K. Sardana sir has given wonderful future view for all the students who are engineers and about to be nation builders. This is not saying word by me, basically. This was some day back said by Indira Gandhi while addressing some engineers gathering. So that is what I just wanted to just recapitulate and tell you, that you are going to be the builders of nation and humanity. So for this particular understanding that when 1500 students were supposed to join, only 15 have joined. So that's something not demoralizing for the speaker, because when it is a Anand Kumar sir or Santosh Takle or Sardana sir, we speak because we feel that we need to inspire youths who are going to really take this baton and go ahead with the developed India. But then this mature thinking still at the age of 20, 21, missing in students is really little worrisome. And when we talk about such topics, it's not to go into such demoralizing aspects. Let's get into something interesting. So before going into any of the part, good evening, everybody. My greetings to all present dignitaries, including students, teachers, Veshwari Sardana sir, Anand Kumar sir, and जिन्होंने इसे अरेंज किया वो विजेंद्र सर, और हमारे खास स्टूडेंट मंगलम जी, राजीव कुमार जी, एंड लॉ प्रकाश जी. Now let's get into the today's talk. मैं कुछ प्रेजेंट करना चाहूंगा. तो प्रेजेंट करने के लिए मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा. आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, इतना बोल. Just give me a second. एक मिनट. उल्टा क्यों दिख रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. अभी ठीक दिख रहा है लगता है. Is it properly visible and audible? Yes, sir. It's visible. Yeah. So you already touched upon this particular topic, saying that every day celebration has got some theme, because we need to really work upon some vast topic. Then we need to have some concise understanding of that particular day or that particular agenda. So this year it's basically engineering for a healthy planet and sustainable development. आज की डेट पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड ऐसे हो गया कि जैसे कि हर ट्वीट में और हर लिंक्डइन स्टेटमेंट में आप हैशटैग की तरह लगा सकते हो, क्योंकि ये कुछ फंडा ही ऐसा है जो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं, जो भी इस पृथ्वी पे दिमाग लेके चलने वाला जीव है, स्पेशली ह्यूमन बीइंग, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो पर डायरेक्टली उसमें जाएंगे नहीं. यू हैव अलॉटेड मी 30 मिनट्स विद सम मार्जिन ऑफ एडिशनल 10-15 minutes. So we'll go slowly. We'll first talk about Engineer Day. As I said, it's basically when we celebrate day, it's about the field, person or activity
which you want to mark upon? जैसे हम लोग साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं या टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं, लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं, अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ईच ईयर इंजीनियर डे हैज सम थीम। इस साल की थीम तो हमने आपको बता दी, बट प्रीवियस थीम्स को भी आप देखेंगे तो ये कुछ ज्यादा अलग नहीं। जैसे स्किल डेवलपमेंट फॉर यंग इंजीनियर्स टू रिफॉर्म द कोर सेक्टर विजन 2025 वाज सम प्रीवियस थीम। रोल ऑफ इंजीनियर्स इन डेवलपिंग इंडिया वाज द थीम फॉर द 2017। तो आप समझ सकते हो कि इंजीनियर एक अहम किरदार निभाता है मास में या पॉपुलेशन में या ह्यूमन सोसाइटी में, कि जिसको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर या एटीट्यूड या एक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ रखना है। ऐसा सब चाहते हैं, सरकार चाहती है, यूनो चाहता है, मतलब वर्ल्ड लेवल से लेके लोकल लेवल से लेके इंडिविजुअल फैमिली लेवल पे भी इंजीनियर से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं। तो ऐसे एक खासम खास इंजीनियर के नाम से ये डे सेलिब्रेट किया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अनंत कुमार सर जी ने थोड़ा पौराणिक होते हुए थोड़े धर्म में घुस गए, मैं उसको टच करते हुए यही बोलूंगा कि दो यू नो मेनी डिटेल्स अबाउट मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी सर, एमवी, दैट इज व्हाट प्रिडोमिनेटली ही वाज नोन एज। ये सब लोगों के बारे में जब भी हम बात करते हैं, डॉक्टर सीवी रमन हो, एमवी हो, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हो, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि दिस पीपल हैव स्टार्टेड विद समथिंग व्हिच वाज प्री इंडिपेंडेंट, व्हिच वाज हैपनिंग इन अ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी इंडिपेंडेंट इंडिया के जो थोड़े बहुत कुछ बुरे आसार हम सुनते हैं, देखते हैं, तो इंडिपेंडेंस के पहले हमारा क्या हाल था, ये समझने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज जरूरी है कि भाई 1960 के दशक में ही तकरीबन 40 लाख लोग भूखमरी से मरे। तो ये हालात थे इंडिपेंडेंस के बाद, तकरीबन 15 साल बाद हिंदुस्तान के। तो हम प्री इंडिपेंडेंस एरा में जब कोई काम कर रहा था, उनको सर नाम की उपाधि से नवाजा गया, उनको भारत रत्न दिया गया इंडिपेंडेंस के बाद, तो सचमुच उन्होंने कुछ ऐसा रोल प्ले किया होगा कि हमें उनके बारे में हर इंजीनियर्स डे पे 5-10 मिनट व्यतीत करके समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज रियली वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। इसलिए मैंने स्लाइड में भी दिखाया, देखिए सर एमवी के बारे में आपको पता भी हो, टोटली मेरे से भी ज्यादा पता हो, तो भी हम थोड़ा वक्त बिताएंगे, बिकॉज हिज लाइफ इज लेसन। महात्मा गांधी जी के फोटो पे जरूरी आप देखोगे ये सब लिखा हुआ, एमवी के लाइफ पे कभी नहीं, एमवी जी के फोटो पे कभी नहीं देखेंगे, बट फिर भी मुझे लगा तो मैं सोचा आपको थोड़ा इलाबरेट कर। 15 September we celebrate Engineers Day to commemorate the birthday of legendary Sir M.P. Okay, it's 1861 to 1962, तकरीबन 101 साल का हेल्दी लाइफ विद सो मेनी अचीवमेंट्स इन इंजीनियरिंग फील्ड, जब इंजीनियर देखने नहीं मिलते थे। और आज कितने इंजीनियर है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेनी ऑफ यू आर आउट। और जहां तक नौकरी की बात करें या कुछ काम करने के अवसर मिलने की बात करें, तो उसमें कितनी तकलीफ भरा रास्ता आपके सामने है, ये बताने के लिए मेरी जरूरत नहीं, यू नो इट बेटर। सो when we talk about this genius specifically, internationally he was recognized for his genius in harnessing water resources. He was responsible for successful design and construction of several river dams, bridges, implementing irrigation and drinking water schemes all over India. He served as a Dewan of Mysore state and was considered to be the architect of all-round development of Karnataka state. Among this successful project was Krishnaraja Sagar Dam adjoining Vrindavan Gardens. मुझे मालूम नहीं आप लोग ये सब के बारे में पढ़ते हो कि नहीं, बट मैं जब छोटा था तो मेरे स्कूलिंग में मराठी में मुझे बाकायदा ये वृंदावन गार्डन्स के ऊपर एक बहुत अच्छा मराठी में जो फेमस ऑथर है उन्होंने लिखा हुआ एक चैप्टर था। और जब मैं हाल ही में गया तो थोड़ा ये महसूस हुआ कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट जब पीछे जाके जब ये हुआ था साकार, उस जमाने में ये कितना बड़ा अचीवमेंट और कितना बड़ा थिंकिंग रहेगा ये हमें समझ में आता है। इतना तो इंटेलिजेंस हमारा इंजीनियरिंग में जाने के बाद डेवलप हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट काम करने वाले इस व्यक्ति ने कितने सारे कंट्रीब्यूशन किए, उससे ज्यादा जरूरी है ये जो केआर सागर मतलब कृष्ण राजा सागर डैम है, उसकी कैपेसिटी थी 40 बिलियन क्यूबिक फीट। अभी ये 40 बिलियन क्यूबिक फीट वाला जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, तो प्रेजेंट ही 15 लोग हैं, सिंसियर है, इंटेलिजेंट होंगे ही। अगर 150 होते तो उसमें भी कम से कम एक 50% लोगों को इसको मैं बोलता कि एटलीस्ट लीटर्स में कन्वर्ट करो, तो मुश्किल हो जाती, तो मैं ही बता देता हूँ 11 लाख बिलियन लीटर्स। मतलब 11 पे कितने जीरो देने हैं ये मुझे नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है
आप सबको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से एप्लीकेबल। आई एम एंड इंजीनियरिंग का स्पेलिंग भला पता हो न हो, इंजीनियर का स्पेलिंग, बट आप सब लोग गुड एट मैथमेटिक्स एंड दैट इज व्हाई यू डेयर टू कम इन इंजीनियरिंग। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है ऐसा हम पकड़े तो भाई 11 लाख बिलियन लीटर्स के लिए 11 के ऊपर कितने जीरो देने होते हैं, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। उन्हें बहुत सारे जो अवार्ड मिले उसमें उनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि आज हम इंजीनियर्स की बात करने वाले हैं तो हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे, इनोवेटर्स की बात करेंगे। अनंत कुमार सर ने शुरुआत ही कर दी क्यूरियोसिटी वर्ड से, और घूमते घूमते उन्होंने कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ हमको कैसे रहना है उसको अलग तरीके से बोलेंगे तो बोलते हैं हाउ टू कीप शार्पनिंग एंड व्हाई टू कीप शार्पनिंग योर स्वॉर्ड। जो भी आपका हथियार है उसको हमेशा धार लगाते रहना है। हमारा हथियार इंजीनियर्स का ऑब्वियसली दिमाग है। तो यही चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि उस जमाने में ही वॉज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग ब्लॉक सिस्टम्स, ऑटोमेटेड डोर्स दैट क्लोज इन अ कंडीशंस ऑफ ओवरफ्लो। इनको फेल सेफ या पैसिव सिस्टम बोला जाता है। तो ये सिस्टम जब न्यूक्लियर सिस्टम की बात करते हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं जहां पे जान माल को खतरा जो हो सकता है बहुत बड़ा है, ऐसे सिस्टम के लिए ये सारे प्रावधान जो है एटमोस्ट इम्पोर्टेंट। और यहाँ हम डैम की बात कर रहे हैं, फिल्मों में हमें अक्सर डैम टूटते हुए पता चलता है और बारिश के मौसम में ये वारदात होते हुए नजर आती है, लाखों लोग मर भी जाते हैं। बट इनका जो सिस्टम है उस जमाने का सिस्टम दैट इज रियली डिजाइन टू दैट मार्क ऑफ इनोवेशन। तो ये है कुछ उनकी हासिल जिसके लिए हम ये सब सेलिब्रेट करते हैं। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि भाई इंजीनियर हो मतलब आपने क्या पढ़ा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि पुराने जमाने में लोग क्या पढ़ते थे और क्या हासिल करते थे, खुद के लिए नहीं, फैमिली के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, मानवता के लिए। तो सर एमवी इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल। He studied, he lost his father at the age of 12, प्राइमरी एजुकेशन सिंपल चिकबल्लापुर करके एक जगह है वहां पे किया। बेंगलोर में हाई स्कूल किया, बट बेंगलोर उस जमाने में उतना फेमस बेंगलोर नहीं था। बैचलर ऑफ आर्ट्स किया। अभी ये थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग था, मैंने ये पढ़ा है 10 साल पहले ही, पर आज मौका मिला तो सोचा आपको भी बता दूं। ही डिड बीए, और बीए करने के बाद फिर उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। उस जमाने में सिर्फ 3 ही इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे। एक है 1847 वाला आईआईटी रुड़की, एक 1794 वाला चेन्नई वाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी चेन्नई, और थर्ड वाला है सीओईपी पुणे, एस्टेब्लिश्ड इन 1854। अभी ये तीसरे नंबर का जो कॉलेज है वहां पे उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया, और बाद में क्या किया इसका हमने पूरा एक रनिंग ब्यौरा मतलब ग्लांसिंग लुक उनके एक्टिविटीज को दिया। आज का सिचुएशन क्या है ये इंजीनियर्स डे पे जानना जरूरी है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कि आज हम 2021 में खड़े हैं। जब विश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया तो 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, और आज 3500 से 4000 या उससे भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये मानसून में जैसे वो मशरूम उगते हैं ना, वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज दिन में 40 खुलते हैं और 50 बंद हो जाते हैं। और इस सारा क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को, ऑब्वियसली गवर्नमेंट मतलब नॉट दिस सम इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी, बट है सिस्टम ही करप्टेड सिस्टम, पोल्यूटेड सिस्टम। तो यहाँ जब हम 4000 कॉलेज की बात कर रहे हैं तो सालाना एक पकड़ लीजिए 1.5 मिलियन, मतलब एक 15 से 20 लाख इंजीनियर आराम से बाहर निकलते हैं। और हाल ही में जो नास्कॉम ने सर्वे किया था उसमें ये पता चला कि भाई 80% इंजीनियर्स, नॉट 80, 82.7% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब आप समझ सकते हो कि लोगों को इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की, साइंटिस्ट की डिग्री लेने में इंटरेस्ट है, दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन बिकमिंग इंजीनियर। क्या है इसके विस्तार से बात करेंगे आगे वाले टॉपिक में इंजीनियरिंग में। बट यहाँ ये जरूरी है कि आप समझे कि हम एक इंजीनियर को इतनी अहमियत दे रहे हैं जिसने जी जान से मेहनत की, आउटपुट निकाला, सारे क्षेत्र में छाए रहे, और जिंदगी में भी इतना कुछ हासिल किया कि 101 साल से भी ज्यादा जिए। मतलब ही हैज नॉट मास्टर्ड द वर्क ऑफ इंजीनियरिंग, ही हैज मास्टर्ड एंड अंडरस्टूड द लाइफ। ये बहुत जरूरी है, जो आज बच्चे समझते नहीं है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि जब इंटरनेट पे ज्ञान का महासागर, या आप नियाग्रा फॉल है ऐसा सोच सकते हो, एंड बच्चे उसमें एक्सट्रैक्ट क्या करना है वो नहीं समझ पा रहे। द प्रॉब्लम इज दैट probably they are not groomed properly in a child age by their parents,
समाज ने एक उनको एडोलसेंट बन रहे थे तभी संस्कार नहीं दिया, और आगे जाके हम उनसे सडनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चांद्रयान में या मंगलयान में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड द सो मेनी डिटेल्स गिवन बाय सरदाना सर अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, सच पूछिए तो जो 1 2 3 है इस पे भी इतना बात किया जा सकता है कि सर के पास समय कम था तो सर ने सीधा 4 को छुआ, और एक मिनिमम लिमिटेड पीरियड में जो डिटेल्स शेयर किए वो दैट वाज एनलाइटिंग फॉर मी। जो बंदा 25 साल से एक बहुत रिनोन्ड प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग था कि हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन इंडियन प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन क्या हो रहा है, क्या पॉलिसीज बन रही है। तो आप जैसे आगे आने वाले इंजीनियर्स के लिए कितना जरूरी होगा। होपफुली यू ऑल विल गो थ्रू हिज वीडियो लेटर। लेट्स गेट इनटू द नाउ सेकंड पॉइंट, बट बिफोर दैट हमने सर एमवी की बात की जो सिविल इंजीनियर थे। तो आज सिविल इंजीनियर इतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके पहले रीजनिंग में जाने के पहले सबसे पहला सिविल इंजीनियर कौन था इस पे मैं प्रैक्टिकली चलूंगा। और नाम है, आपने मम्मी नाम की फिल्म देखी है? मेरे ख्याल से आप सबने द मम्मी नाम का जो पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया, ओके, मम्मी रिटर्न्स, उसमें एक आप कुछ समझे ना समझे इंग्लिश में एक चीज बहुत दिमाग में मेरे फिट हो गई, इमोटेप। अभी वो इमोटेप जब मैंने ढूंढा तो पता चला द इमोटेप वाज द फर्स्ट and the greatest civil engineer in this world who developed the step pyramid of Giza in 2630 BC। अभी बीसी मतलब आज के 2100 साल और पीछे के 2630 साल, तो तकरीबन आप ऐसा पकड़ लीजिए कि 5000 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। उस जमाने में ऐसे नहीं कि इंडिया में आर्किटेक्ट या बाकी चीजें डेवलप नहीं हो रही थी। इंडिया was one of the great country at that period, that is why Mark Twain said that India is a cradle of the humanity। बट यहाँ जरूरी चीज है कि आज जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो उनको इमोटेप या जो मतलब एक माना जाता है कि उन्होंने वो किया होगा या जिन्होंने भी किया, देवर द आर्किटेक्चर ऑफ मार्बल। सिविल इंजीनियरिंग का एक आइकॉनिक उत्तम उदाहरण है कि पुराने जमाने में भी टेक्नोलॉजी इस को विकास करने वाले दिमाग का भी विकास हुआ था 5000 साल पहले। तो ये है भाई बैकग्राउंड कि इंजीनियर्स डे पे इंजीनियर जो है वो सर्टिफिकेट वाला नहीं होता है, इज द इंजीनियर बाय माइंड। And that is why we really need to understand that engineering क्या है। तो engineering is not the study of 45 subjects to clear them, it's really about moral study of intelligent, sincere, dedicated, practical, goal oriented life। सच पूछिए तो इस सेंटेंस को ही मैं यहाँ लिख देता और आपको बोल देता कि भाई इसी पे आप गौर करते जाओ, तो 10 बार पढ़ने के बाद आपको और 50 मतलब उसमें से समझते हैं, जिसको हम रीडिंग बिटवीन द लाइंस बोलते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, बीच में हमारे एक जूनियर दोस्त ने अच्छी पोएम पढ़ी और उसमें बार बार जिक्र हो रहा था कि हम रात को पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं, एग्जाम के पहले पढ़ते हैं। मैं ऐसे टाइप का इंजीनियर नहीं हूँ, ना ही मेरे ख्याल से सर एमवी होंगे, ना ही कोई लायक व्यक्ति जिनका मैं आगे जिक्र करने वाला हूँ वो। Engineering is about that same thing I talk, and I'm going to repeat it throughout my complete lecture। 7:22 हुए हैं, तो मुझे कितना टाइम देना है वो चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए, उतना ही बोलूंगा, बाद में रुक जाऊंगा। सो आपने इंजीनियरिंग डे का मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करते वक्त ये सब सेशन आपने भी बहुत मटेरियल ढूंढा होगा। जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे कुछ अच्छे अच्छे चीजें पढ़ने मिली और जिसको समराइज फॉर्म में मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। साइंस इज अबाउट नोइंग। जैसे आपका मैंने जो आपके यहाँ आके एक लेक्चर दिया था और आपने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था, उसको हम टच करेंगे, जिसके हमने शुरुआत की ज्ञान से, फिर चले विज्ञान में, दैट इज साइंस में, और ये जो नॉलेज डोमेन है इसको कन्वर्ट किया जब एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीजों में, तो दैट बिकम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। तो मैं हमेशा ये वर्ड्स का इस्तेमाल करते आया कि भाई आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज, नॉलेज वर्ड्स ट्रांसफॉर्म टू द साइंस, एंड साइंस इज नथिंग बट द actual understanding of the available concept and धारणाएं, facts, to cross check it on the basis of scientific evidence। और इसी को हम सपोज नॉर्मल धारणाओं से निकाल के हम इसी चीज को प्रैक्टिकली चीजों में लाए। एक उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं, चाय उबलते हुए उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ, या राइस उबलते हुए और उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ, या आप जो भी मेनू बनाना चाहते हो, मतलब सब्जी बना लो, चिकन बना लो, हमने सबने उस पर्टिकुलर जो ढक्कन रखा हुआ है उसका हिलना, उसकी मूवमेंट, उसका गिरना, उसके साथ अंदर का मटेरियल बाहर आना देखा। बट ना आपको ना मुझे
कभी महसूस हुआ कि भाई ये जो स्टीम है, भाप है, इसमें बहुत शक्ति रहती है और लेट अस मेक सम जुगाड़ कि भाई घर पे जो मम्मी डैडी या दादाजी जो औजार चलाते हैं बैलों की मदद से, उसको हम भाई स्टीम से चला लेते हैं। बट किसी को ये लगा, उनको हम जेम्स वैट बोले, उनके नाम से हम पावर को यूनिट दे, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज समथिंग इंस्पिरेशन वी नीड टू ड्रॉ कि आप जब देखते हो ये वाकया होते हुए, ये हैपनिंग, ये इवेंट होते हुए, तो क्या सचमुच आप अपने आप को उस लेवल पे लाके जाने की कोशिश कर रहे हो कि उस टीम से स्टीम इंजन बने, उससे लोकोमोटिव चले, फिर आगे जाके पता चले कि इससे भी बेहतर तरीका है तो डीजल इंजन बने, और आगे जाके पता चले कि इससे भी बेहतर तरीका है इस पावर को कहीं बनाया जाए, ट्रांसमिट किया जाए और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इसको इस्तेमाल किया जाए। और बाद में पता चला कि जो व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है वो जब स्पीड ब्रेकर पे चले तो किसी माध्यम से उससे इलेक्ट्रिसिटी फिर से बनाया जाए। ये है टेक्नोलॉजी, ये है इवोल्यूशन इन थिंकिंग, मतलब मस्तिष्क का विकास जो टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कारण है, वो ऐसे होता है, ये समझना इंजीनियरिंग। तो ये इंजीनियरिंग जब आप देखते नहीं हो तो आपको सिर्फ थ्योरेटिकल चीज पता रहती है कि रिसर्च इज अबाउट डिस्कवरिंग एंड इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग, और हम इंजीनियरिंग में एक्चुअली कुछ क्रिएट नहीं करते। 4 साल में कुछ न क्रिएट करने वाले बच्चे नॉर्मली किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करते वक्त कितना बोलते हैं, क्या मुझे जॉब मिलेगा, मुझे जॉब चाहिए, मुझे बहुत जरूरत, अपना नाम, एजुकेशन, आप कहाँ रहते हो, आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है, कुछ नहीं। तो इतनी जो नासमझी भरी पड़ी है सिर्फ अपने देश में नहीं, दुनिया भर में, कि डेवलपिंग नेशंस के 80 नहीं, 90 नहीं, 95% इंजीनियर्स कैन बी अनएम्प्लॉयड। और ऐसे हालात में इंजीनियरिंग करते वक्त आपको ये समझ में आना चाहिए कि सक्सेसफुल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स ब्रेक और फेल। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो कि मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपके घर पे अगर लाइट नहीं चल पा रही है, बल्ब नहीं चल पा रहा है, या मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है, या माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा है, गैस स्टोव काम नहीं कर रहा है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उसको ठीक करें। माँ के प्रति प्यार के लिए नहीं, सद्भावना के लिए नहीं, ये आपका काम है जो आगे जाकर आपके लिए रोजी रोटी कमाने वाला। दिस इज व्हाट इज दैट हाउ थिंग्स ब्रेक और फेल एंड हाउ दे कैन बी मेड ऑपरेशनल। ये चीजें आप इंजीनियरिंग में सीखे तो आगे आपको इंजीनियर्स को सिखाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपके साथ रहने वाले इंजीनियर्स या आप जिनके साथ काम कर रहे हो वो मैनेजमेंट या आपका एम्प्लॉयर विल बी ऑलवेज हैप्पी विद। आज ये हो रहा है क्या? आप सचमुच देखोगे तो नॉर्मली पीएचडी करने वाले स्टूडेंट छोड़ो, एमटेक करने वाले स्टूडेंट छोड़िए, इंजीनियरिंग करके जिनको कहीं नौकरी नहीं मिली वही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडॉक बेसिस पे पढ़ाते। ऐसे इंजीनियर जिनको खुद की नौकरी ढूंढना नहीं आता, वो जब इंजीनियर्स को पढ़ाएंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छे इंजीनियर, प्रैक्टिकल इंजीनियर बनेंगे? तो ये जो इंजीनियरिंग में होना है वो नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको सही मायने में जो चीज जब करनी है तो करनी है ही, उसको आप प्रोक्रेस्टिनेशन, या मैं एक रात में पढ़ता हूं, इस तरीके से एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स एज अ just part of fun is different, but somebody is taking some wrong lesson from it is not acceptable. हमारे कॉलेजेस में भी ये विचार काफी घूमते थे कि रात में पढ़ के जो इंजीनियर होता है वो सही इंजीनियर है, उनको 2-2, 3-3 साल नौकरी नहीं मिली है, और मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मेरे इंजीनियरिंग से निकला एक एवरेज कॉलेज से, और मेरे पास अकेले के पास 3 नौकरी थी, जबकि जो इंजीनियरिंग से मेरे साथ निकले उन सबके पास मिला के 10-12 नौकरियां। तो ये फर्क आपको, ये मैं मेरी गाथा नहीं बता रहा हूँ, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि इंजीनियर्स डे हो या साइंस डे हो या टेक्नोलॉजी डे हो या लिटरेसी डे, आपका काम है ऑडियंस को इंस्पायर करना और सही दिशा में ले जाना, कि आपका भी एक जिम्मेदारी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिम्मेदार नहीं हो, बट जिम्मेदार व्यक्ति को भी जिम्मेदारी का जो जानकारी है वो डे टू डे बेसिस पे या ओकेजन बेसिस पे देना जरूरी है। द वे टू बी सक्सेसफुल इन इंजीनियरिंग वर्ड इज टू कम अप विद द ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स। अभी ये मैं नहीं बोल रहा, ये अनंत कुमार सर जी ने भी बोला, सरदना सर ने भी बोला कि इतना कंपटीशन है कि भाई 90% काम तो सब करते हैं, 10% में कंपटीशन खड़ा है, और ये 10% में अगर आप ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर नहीं लाओगे तो ना ही आपको माइक्रोसॉफ्ट लेने वाला है, ना कार बनाने वाली कंपनी लेने वाली है, ना विंडोज वाले लेने वाले हैं। तो न्यू आइडियाज सरप्राइजिंग द मार्केट प्लेस are important in engineering, which is actually business.
इंजीनियरिंग मतलब है क्या? हम बिजनेस के पॉइंट पे खड़े हैं, हमें अपने आप को नहीं बेचना है, हमारे स्किल को बेचना है, और उस स्किल का पैकेजिंग जो जरूरी है और जो इनहेरेंटली इस प्रोडक्ट के साथ रहने वाला वो है सिंसियरिटी एंड हार्डवर्क। मतलब मराठी में एक कहावत है कि आडात नहीं तो पोऱ्यात कुठून येणार। आपके अंदर सिंसियरिटी नहीं होगी, लगन नहीं होगी, डेडिकेशन नहीं होगा, तो आपके बिहेवियर में, आपके काम में और आपके इनोवेशन में वो कभी नहीं दिखेगा। मतलब वो कहीं नहीं दिखेगा, और कहीं नहीं दिखेगा तो आपको किसी को आपकी जरूरत कभी महसूस ही नहीं होगी। At its heart, what we can say is engineering is about using science to find creative, practical solutions. And obviously, it's a noble profession क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बताया कि भाई सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्ट करता है, मैकेनिकल इंजीनियर पूरी दुनिया को मूव करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला पूरे दुनिया को छोड़ के इतना छोटा बना दिया है। आप बात करेंगे किसी भी इंजीनियरिंग की तो कहीं ना कहीं कुछ क्रिएशन में इन्वॉल्व है 100%। कंप्यूटर साइंस तो ऐसे लगता है कि मैजिशियन ही। बट जब आज हम बात कर रहे हैं, शुरुआत हमने एक सिविल इंजीनियर से की जिनके कारण आज हम वो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज सिविल इंजीनियर की बात करो आप या मैकेनिकल की बात करो जो एवरग्रीन बोला जाता है, और कंप्यूटर्स वाले जिन्होंने दुनिया को कहां से कहां लाके रख दिया, ये होने के बावजूद भी आज भी हाईएस्ट पेड जॉब जो है पेट्रोलियम की। तो ये सरप्राइजेस नहीं है, या अवेयरनेस। व्हाट इज योर लव, व्हाट इज योर पैशन व्हेन यू ट्राई टू बी इन इंजीनियरिंग? मैं थ्री इडियट फिल्म की बात नहीं कर रहा, बट विदाउट एनी प्राइम इंटेंशन, एजेंडा और टारगेट यू विल नॉट बी एबल टू अचीव इट। मैंने हाँ कुछ साल पहले एक किताब पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसका जिक्र हम वक्त मिला तो आगे करेंगे। उसमें शुरुआत ये इससे होती है कि भाई आपको प्रोएक्टिव होना है। सर ने इतना अच्छा जानकारी देने के बाद आपको पूछा कि चलो भाई आगे के स्पीकर के लिए लेट हो ना हो, आप कुछ सवाल है तो पूछिए। एक ने भी सवाल नहीं पूछा, तो मतलब ना एक्टिविटी है, ना इंटरेस्ट है, ना प्रोएक्टिविटी। प्रोएक्टिव होना मतलब आपको खुद से जाके आपके जरूरत के हिसाब से लोगों से इंटरेक्ट करना, चीजों से इंटरेक्ट करना, नॉलेज से इंटरेक्ट करना, टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करना। आज सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है, तो एक प्रोएक्टिवनेस नहीं है। तो सेकंड लाइन है उस 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की कि भाई सेकंड है कि आपको जिंदगी में एक टारगेट डिफाइन करना, मतलब स्टार्ट विथ एंड इन माइंड। शुरुआत करने के पहले अंत के बारे में सोचो। तो यहां नहीं सोचा, फिर आप इंजीनियरिंग करो, पीएचडी करो, और बाद में कितना भी कोसो, प्रधानमंत्री को कोसो, नहीं तो चीफ मिनिस्टर को कोसो, नहीं तो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या माँ बाप को, फाइनली यू विल बी द पर्सन हु विल बी बेयरिंग द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस। तो इंजीनियरिंग के बारे में आप बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हुए सुनेंगे, बड़े बड़े स्टालवर्ड जो आगे जाके इंजीनियरिंग के फील्ड में या किसी बहुत अच्छे फील्ड में नाम कमाए, उनका में से एक का कहना था जो मैंने अपने शब्दों में लिखा है। यू विल फाइंड मेनी पीपल हु हेटेड साइंस एट हाई स्कूल लेवल। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, ये सब उनको बहुत बेकार चीजें लगती थी। उनको लगता था इसकी जिंदगी में सचमुच जरूरत क्या है। और ऐसा आदमी जो मोहब्बत करता था कला से, म्यूजिक से, जब उसने सही मायने में म्यूजिक में या कला में महारत हासिल की, तो उसको रियलाइज हुआ कि म्यूजिक हो या आर्ट हो या कोई बहुत बड़ा डिजाइन एस्पेक्ट्स हो ऑफ दम सोशल प्रोजेक्ट्स और सम आर्किटेक्चर मार्वल, शुरुआत तो इंजीनियरिंग से और मैथमेटिक्स से और इनोवेटिव थिंकिंग से होती है, जिसके रूट्स प्ले करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो ये चीज अगर आप समझे तो ये जल्द ही समझ जाएंगे कि आपका झुकाव भले ही कला की तरफ हो, वेरी थीन मेम्ब्रेन और पर्दा एग्जिस्ट बिटवीन द आर्ट एंड इंजीनियरिंग, ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए। देयर एग्जिस्ट न्यू एरा। अभी सर ने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 की बात की, मैं बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग जो नए सिरे से ओपन अप हो रहा है, और सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, आप सही पकड़े हैं, आप सही पकड़े हैं कि सोशल इंजीनियरिंग मतलब सोशल वेबसाइट पे विजिट करना और वहां पे लोगों का माइंड सेट समझना और उसके हिसाब से दुनिया को इस्तेमाल करना या यूज करना या फिर उनमें कुछ कंट्रीब्यूट करना कि हमारी रोजी रोटी चलती रहे। सो व्हाट इज दिस? This social engineering, it has become about 75% of average hackers toolkit. आज जो इथिकल हो, अनइथिकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पे हैकिंग बिजनेस कर रहे हैं, और ये हैकर 75% एक्सट्रैक्शन है उनका जो उन्होंने जिंदगी में खुद से सोशल इंजीनियरिंग सीखा,
और जिसके डायास या व्यासपीठ ओपन किए ये नए एरा की आईटी टेक्नोलॉजी ने। आगे जाके तो ये बोलूंगा कि मोस्ट सक्सेसफुल हैकर्स है वो इस लेवल पे पहुंचते हैं कि 90% उनका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो सोशल इंजीनियरिंग से आता है। तो ऐसे हालत में इंजीनियरिंग सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं है, इनोवेशन या इनोवेटिव होना नहीं है, बट टीम वर्क के साथ इनोवेशन का इस्तेमाल करना भी। जो बच्चे ये जो ऐसे गैदरिंग्स टीचर लोग अरेंज करते हैं इसमें सम्मिलित होके टीचर का लोड कम नहीं करते, तो ऐसे बच्चे आगे जाके एक अच्छे कुशल इंजीनियर या कारागिर होने का, स्किलफुल होने का चांस कम है। आज मैं कुछ बच्चों के चेहरे यहाँ पे देख रहा था, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं ऑनलाइन स्क्रीन पे, जो शायद आज 4 लोग देख रहे हैं, बट चांसेस है कि वो फेमस हो जाए तो उसको 4 करोड़ या 40 करोड़ लोग देखेंगे। और वो अपने आप को इतने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग भी कभी कभी नहीं कर पाते। तो ये चीज सीखनी है। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग। तो आज जो बच्चों ने ये सब चीज में पार्टिसिपेट किया और जिनको मैं पहले से जानता हूँ कि वो पर्दे के पीछे रह के बहुत काम करते हैं, 3 नाम तो मेरे नजर के सामने हमेशा ही रहेंगे, मंगलम जी हो, राजीव कुमार हो या लौ प्रकाश। तो ये सारे लोग जो है दे आर बाउंड टू बी वेरी गुड इंजीनियर एंड सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। फाइनली करना जिंदगी में यही है। तो engineers like to solve problem and if there are no readily available you should be able to create, जिसका जिक्र सरदना सर ने किया। और फिर उनको लगा कि शायद कुछ ऐसा तो नहीं बोलते कि हम प्रॉब्लम क्रिएटिंग मेंटेलिटी की तो बात नहीं कर रहे। नहीं सर, हम लायक लोग तो समझ रहे हैं कि आप एग्जैक्टली क्या एड्रेस करना चाह रहे थे। तो इंजीनियरिंग के स्किल सेट में प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ, प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद जो नए टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको समझना, उनको ठीक से इलेबोरेट करके उनके सॉल्यूशन के पीछे लगना भी। तो अगर ये सारी चीजें इंजीनियरिंग है और मैं 7:36 तक पहुंच चुका हूं, तो मैं स्क्रीन से बाहर आना चाहूंगा और सर को पूछना चाहूंगा, या स्क्रीन से बाहर आए बगैर सर कितना मिनट कंटिन्यू कर सकता हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इनको हाथ पकड़ने दे दिया, ये तो सीधे कंधे पे बैठ गए। बोलिए। Yes, sir. You can continue, sir. अरे टाइम लिमिट बोलो भाई, बोलना पड़ेगा 8 बजे तक। 8 बजे तक कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? Yes, sir. ठीक, थैंक यू। तो आगे का मुद्दा, इंजीनियरिंग को बहुत ही ज्यादा मैंने बेवजह डिस्क्राइब कर लिया, जरूरी थी इंस्पिरेशन के तौर पे। इंजीनियर्स रोल इन प्रेजेंट एरा, ये इंजीनियर्स रोल इन डेवलपिंग इंडिया नाम का तो थीम ही बना दिया था 2017 के इंजीनियर्स डे का। तो अब इंजीनियर्स का रोल जो है डेवलपिंग इंडिया कब से सुन रहा हूं मैं, कब से सुन रहा हूं। उस पे तो सर एपीजे साहब ने तो किताब लिख डाली, फिर उसके किताब के चलते उनको अप्रिसिएशन मिलते मिलते बहुत कुछ उन्होंने देश के लिए किया और उनके लिए भी बहुत कुछ हो। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रोल ऑफ इंजीनियर्स क्या है। तो मैंने अपनी तरफ से 3 रोल कर दिए। एक है रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब यंगस्टर्स। यंगस्टर्स जो आपकी तरफ देखते हैं कि भैया इंजीनियरिंग में जाती है, दीदी इंजीनियरिंग में जाती है, वो आपकी तरफ देख के सीखते हैं। क्योंकि बच्चों की खासियत ये है, वो लेक्चर से कम और आजू बाजू में जो घटनाएं हो रही है, आचार विचार उनके साथ मिलते हैं, वो घूमते हैं जिस एरिया में, उसका उन पे बहुत इफेक्ट होता है। तो आप रोल मॉडल है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट, तो उसमें आपका रोल क्या है? सोसाइटी एज ऑन होल आपकी तरफ देख रही है, आप गांव से हो, शहर से हो, किसी कस्बे से हो, किसी बिल्डिंग से हो, तो सोसाइटी आपकी तरफ हमेशा नजर रखती है। इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं उनको सुनना पड़ता है कि भाई वो बच्चा देखो 3rd फ्लोर पे रहने वाला फलाना फलाना अंकल जी का कितना अच्छे से पढ़ता है। ये सोसाइटी का टेक होम, जिसके लिए भी आपको खुद को जिम्मेदार तरीके से बिहेव करना है, नॉट एज ए इंजीनियर बट एज ए एजुकेटेड पर्सन। बट आज इंजीनियर का दिन है तो इंजीनियर पे बात करें। एंड योर यूजेबिलिटी टू द नेशन, मैनकाइंड एंड प्लेनेट। प्लेनेट की तो बात करनी होगी क्योंकि हमारा थीम ही ये है, रोल ऑफ मतलब इंजीनियरिंग फॉर द प्लेनेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलो शुरुआत करते हैं कि ये चीज के मद्देनजर मैं कौन से नाम ले सकता हूं कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। मैं नाम बोलूंगा, आप दिमागी खुद के दिमाग में सोच लीजिए, क्या ये सचमुच किस उनके जमाने में स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल रहे होंगे या सोसाइटी के लिए एक आइकन रहे होंगे जब वो उभर रहे थे। और आज की डेट पे जब हम पीछे जाके इनके जिंदगी की तरफ देखते हैं तो क्या यह नेशन, मैनकाइंड और प्लेनेट के लिए यूजफुल थे। चलो विक्रम साराभाई,
डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर एपीजे कलाम, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, नारायण मूर्ति जी, सैम पित्रोदा, रघुराम राजन, सुंदर पिल्लाई, सत्य नडेला। और दो तीन इंपॉर्टेंट नाम मैंने शुरुआत के नहीं लिए क्योंकि वो इंजीनियर नहीं थे, उनका बैकग्राउंड साइंस से शुरू हुआ और वो साइंटिस्ट बने। जैसे से डॉक्टर सीवी रमन जी की बात करें, डॉक्टर मेघनाथ साहा जी की बात करें, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की बात करें, बट ये सब लोग साइंस से जुड़े हुए इंजीनियरिंग प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए ही अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सॉरी, और मानवता के लिए इस तरीके का उत्तम उदाहरण बने कि इनको आप एक आइडल की तरह फॉलो करोगे, सिर्फ फोटो लेके नहीं, उनके आचार विचार और उनके जीवन को अपना एक लाइफ लेसन बना के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जिंदगी के जो दिन के 24 घंटे हैं, तकरीबन 86,000 सेकेंड्स है, उसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है। एक बार वो दिमाग में आ गया तो मुझे ये 3 पॉइंट्स जो लिखे हैं, रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट, सोसाइटी और नेशन, मैनकाइंड, इस पे ज्यादा इलेबोरेशन नहीं करना पड़ेगा। जबकि आपने मुझे बुलाया है स्पीच देने, तो मैं थोड़ा अपने जीवन से शुरू करना चाहूंगा। होप इट डजंट बॉदर यू मच। मैं स्कूल कॉलेज में जितना मस्ती करता था, गांव में जिला परिषद के मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ा, 10वीं तक मराठी मीडियम, फिर आगे जाके एक सिंपल सा कॉलेज, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज। डॉक्टर बाटू तभी कुछ नहीं था, हम शेड में पढ़ते थे और जब इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होता था तो ऊपर से बारिश होती थी और शीट को संभालते संभालते हमको बहुत तकलीफ होती थी। फिर भी मैं एक अच्छा इंजीनियर बना। तो इंजीनियरिंग बनते वक्त मेरे जिंदगी में जो बाद में मेरे स्कूल कॉलेज के एनवायरमेंट में मेरे बारे में क्या ओपिनियन था ये पता चलने लगा। तो आज भी मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज आप जाओगे और संतोष टकले पूछोगे तो आपको लोग ऐसी ऐसी कहानियां बताएंगे। एक तो मैं ही खुद बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है वो वाकया जब मैंने किसी के मुंह से सुना। मैं इंजीनियरिंग में था, सेकंड थर्ड ईयर में, से थर्ड ईयर में हमारा हॉस्टल शुरू हुआ, बहुत ही छोटा सा, सब एक दूसरे को जानते थे। और एक दिन सडनली मैं पढ़ रहा था स्टडी रूम में और मेरे सामने ऐसे व्यक्ति खड़े हो गए कि मैं शॉक्ड हो गया। देखा तो मेरे वाइस चांसलर थे। अभी वाइस चांसलर ऐसी व्यक्ति रहती थी हमारे कॉलेज में कि उनके लिए गाड़ी थी, उनके आगे पीछे लोग दौड़ते थे और वो आगे, मतलब कॉलेज का हवा ही कुछ अलग रहती थी, वो वही कभी कभी रहते थे। और वो मेरे सामने खड़े कर मुझे डायरेक्टली पूछे, यू आर संतोष टेकले? हाँ। तो बोला, आप यहाँ पढ़ते हो, बहुत पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, बट आपको रूम में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मैं बोला, नहीं सर। तो ये स्टोरी को मैं रूम तक नहीं लेके जाऊंगा कि वो उसका स्टोरी बहुत अलग था, वो मैं कभी आपको फुर्सत से कॉलेज आऊंगा या आपसे कुल मुलाकात होगी तो बोलूँ। बट द नोटिस कि somebody is studying day in and out was noted by, it was noticed by highest authority of the college, that is vice chancellor। स्कूल कॉलेज की बात, बाकी लोगों की बात करें तो आज भी कोई बोलता है कि मैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या अणुशक्ति नगर से आया हूँ, तो बोलते हैं हाँ वहां पे हमारे एक है ना संतोष टकले जी। तो ये मैंने कई लोगों से सुना। तो आप समझ सकते हो कि इट्स नॉट अबाउट माई इंटेलिजेंस, नोबडी टॉक्ड अबाउट माई इंटेलिजेंस थ्रू आउट माई लाइफ, एवरीबडी टॉक्ड अबाउट माई सिंसियरिटी। जो काम हाथ में लिया उसके प्रति जस्ट गिव मी सेकंड, थोड़ा पानी पी लेता, उसके प्रति निहायत आपको सिंसियर रहना पड़ेगा, आपको कॉज को डेडिकेट करना पड़ेगा। मेरा इंजीनियरिंग का टारगेट घुसने के पहले यही था कि मेरे मम्मी डैडी का कहीं पहचान नहीं है तो मुझे एक नौकरी पानी। और उसके लिए मैंने इतने एफर्ट किए कि नौकरियों की लाइन लग गई। आप आज भी बोल सकते हो कि आज भी ऑफिस में हूँ, बट देयर आर मेनी पीपल हु कीप आस्किंग कि आपकी जो एक्सपर्टीज है उसके लिए हमारे पास काफी स्कोप है, विल यू बी इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग अस। तो ये चीज आप नहीं कर रहे हो, इंजीनियरिंग में आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है आपकी सिंसियरिटी, आपके डेडिकेशन के लिए, आपके हार्डवर्क के लिए, तो आप कहीं चूक रहे हो। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप शुरू हुआ और मेरा वर्कशॉप का प्रैक्टिकल टर्निंग सेक्शन जो था उसका पहले दिन में खत्म होता है। मेरे क्लास ने मुझे पीएचडी दे दिया था, दे यूज्ड टू कॉल मी डॉक्टर। वो इसलिए था कि मुझे चीजें खुद से करने में बड़ा इंटरेस्ट है। आज भी जो बच्चे मुझे जानते हैं, मेरे घर पे आके रह के गए हैं, जैसे मंगलम जी वगैरह, दे नो कि मैं खुद चीजें करता हूँ। मैं दूसरों के ऊपर चीज छोड़ के खुद आराम नहीं करता, मुझे ये सब हैबिट है ही नहीं। तो भाई खुद करना इंजीनियरिंग है तो हाथ गंदे करने पड़ेंगे, आपको उसमें उतरना पड़ेगा, और यही इंजीनियरिंग है। तो धीरे धीरे मेहनती व्यक्ति को रोल मॉडल स्कूल कॉलेज, आप सोसाइटी या देश बनाने लगता, आप भी देश के काम आते। अब इसमें आज ज्यादा जाएंगे नहीं, ये तो मैंने बता दिया कि यू आर गुड एट मैथमेटिक्स। सो जस्ट इन शॉर्ट, इंजीनियरिंग स्टिमुलेट्स माइंड, kids get bored easily,
They have got to get out and get their hands dirty, make things, dismantle things, fix things. When the schools can offer that, you all have good engineer for life. आप समझ रहे बात को? जो मैंने जिक्र किया ये मैं आज भी महसूस करता हूँ कि जब शुरुआत में साहिल जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो शायद उन्होंने गौर नहीं किया, स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, उन्होंने बोला मैंने 25,000 लेक्चर दिए। भाई 25 साल के जिंदगी में 25,000 लेक्चर देने के लिए साल में 1000 लेक्चर देने पड़ेंगे, और 365 दिन में 1000 लेक्चर देने के लिए डेली 3 लेक्चर देने पड़ेंगे। और मैं लेक्चरर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ जो एक अच्छा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड काम करता है, देश के काम आ रहा है। तो ये गलत फिगर है, ये आपको इमीडिएटली महसूस होना चाहिए था। मैंने 2500 से 2600 लेक्चर दिए और 8-9 लाख लोगों को एड्रेस किया। तो सॉरी, मैं नो ऑफेंस, जस्ट टू करेक्ट थिंग कि आप जब चीज पढ़ते हो तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और आपको उसमें सोचना पड़ेगा कि आप कहीं गलत तो नहीं। एवरी टाइम इंटरप्रिटेशन ऑफ योर इंटेलिजेंट ब्रेन हु इज गुड इन मैथमेटिक्स हैज टू बी देयर। यहाँ मैं यही बताने की बात कर रहा हूँ कि जब मैं छोटे बच्चों के साथ रहता हूँ तो मैंने उनको हाथ गंदे होने के लिए कभी बुरा फील करते हुए नहीं देखा। मैंने उनको कोई चीज बोला भाई इसे खोलो तो खोल लो, बोलने के पहले एक चीज खुल चुकी होती। उनको बोला जोड़ो तो बोलने के पहले जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई होती। ये सारी चीजें इंजीनियरिंग में बच्चों को बतानी पड़ती है कि भाई वो मैकेनिज्म है, उसको खोल के देखो, ड्राइंग बनाओ और उसी को समझ के आपको एग्जाम में आने वाला है तो एग्जाम के समय पढ़ना नहीं पड़ेगा। और लोग ड्राइंग कॉपी मारते हैं, बच्चों से असाइनमेंट कॉपी मारते हैं, टीचर्स को किसी भी तरीके से इस तरीके से खुश करना चाहते हैं कि भाई बगैर लिखे, बगैर ड्राइंग किए, बगैर समझे हम पास हो जाए, सर्टिफिकेट मिले और फिर लोग बोले कि भाई ये तो इंजीनियर बन गया, और हम बोले कि कुछ पढ़ के फायदा नहीं है क्योंकि आजकल नौकरी नहीं। कम आउट ऑफ दिस थिंकिंग विच इज डिमोरलाइजिंग टू द नेशन एंड ह्यूमैनिटी। सॉरी, थोड़ा तो बताने की बात यहां बता दी। आगे, देयर इज नथिंग आई बिलीव in more strongly than getting young people interested in science and engineering for better tomorrow for all men. आज दोपहर में मैं गलती से लंच मिस कर गया तो चाय पीना, दोपहर में नहीं, शाम को चाय पीने गया निकलते तो वहां पे लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि मेरे बच्चे ने बोल दिया कि नहीं वो तो साइंस पढ़ेगा नहीं, वो तो आर्ट्स नहीं जाएगा। तो आई वाज इंसिस्टिंग कि मुझे आर्ट्स या कॉमर्स या किसी भी ह्यूमैनिटीज की ब्रांचेस से कोई आपत्ति नहीं है, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो रिफॉर्म आया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, इसका उद्देश्य ये नहीं कि लोगों को नॉन इंटेलिजेंट या ब्रेन का इस्तेमाल या आपका एनालिटिकल एबिलिटी न इस्तेमाल करने वाले फील्ड में सरकार भेजे। इसका उद्देश्य ये है आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बिल्ड हो बट आपका इंटरेस्ट भी परस्यू। विल यू गिव मी सेकंड, मुझे कुछ थ्रोट में इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, मैं 2 मिनट में आपको ज्वाइन कर। श्योर सर। जब तक चल रहा है चला लेते हैं बाजा। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं उनको ये बता रहा था कि साइंस पढ़ना जरूरी है, मैथ्स पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपके दिमाग का विकास जरूरी है। और दिमाग के विकास के लिए आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पढ़ना है 2 बार 3 बार और आपके दिमाग में वो बैठ जाता है। बहुत लोगों के नहीं बैठता जिनको मैथ्स और साइंस में रुचि होती है, और लोगों ने बता भी दिया कि ब्रेन में ये हिस्सा जिनका ज्यादा इवॉल्व रहता है, इंटरेस्टेड रहता है, अनुवांशिक तरीके से वो अच्छा रहता है तो वो उसमें चले जाते हैं। मैं थोड़ा ये सारी चीजों को नहीं इतना मानता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इंसान का ब्रेन जो है वो इतना इंटरेस्टिंग एलिमेंट है और इतना एडेप्टिव है और इतना इवॉल्व है कि जो चीज हम करना चाहते हैं हमारी सीमित आयु में, तकरीबन एक 70-80 साल जो होते हैं, तकरीबन 2.25 अरब सेकेंड, कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम अपने ब्रेन को सही ढंग से प्रैक्टिस दे और इंस्पायर्ड। इसके बारे में तो सर ने बोल दिया कि हिरन हो या शेर हो, दौड़ना जरूरी है अगर बचाना, तो वैसे ही दिमाग चलाना जरूरी है अगर आपको ये दिमाग के होड़ में या कंपटीशन में आगे रहना। तो आगे रहने के लिए आप बोलोगे नहीं 8वीं तक परीक्षा ही नहीं होगी, सबको धक्का स्टार्ट किया जाएगा, सब आगे पहुंच गए, 9वीं से बोलेंगे आप मैथ साइंस छोड़ दो। तो बच्चे दिमाग का इस्तेमाल कैसे करेंगे? बच्चे कैसे समझेंगे कि ये करने के बाद इसके 4 तरीके के इम्प्लीमेंटेशन से सॉल्यूशन निकलता है? भले जो आपका टारगेट है वो चेंज ना हो,
बट टारगेट अचीव करने के 4 नहीं 40 तरीके आप ऑब्टेन या तैयार कर सकते हो अगर आपका दिमाग इवॉल्व। और इस पे सरकार इस तरीके से आए, सरकार गलत तरीके से नहीं आता, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले गलत तरीके से आते हैं, जो एग्जाम को गलत मानते हैं। हाल ही में एक नई चीज आई सामने कि भाई नीट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि किसी ने उसको निगेटिवली लेते हुए प्रेशर में कुछ गलत कदम उठाया। ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ, बट इट डजंट मीन दैट वी विल टेक सम स्टेप जिससे ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाए। सिंसियरिटी डेडिकेशन के साथ एक डेवलपमेंट होना चाहिए दिमाग का, मस्तिष्क का, जो आपको नेक्स्ट जनरेशन में दिखता है वो सिर्फ आपके लिए, खुद के लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए और मानवता के लिए बहुत जरूरी। हमने जिस चीज की बात की ये था जर्नी नॉलेज टू टेक्नोलॉजी। छोटे टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करके किसी ने कुछ सोचा जिससे एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन आया, सोच में बदलाव आया, और आज हम उस एरा में जी रहे हैं सिर्फ 400 साल बाद कि हम दुनिया के ऐसे ऊंचाई पे खड़े हैं जहां से दुनिया का अवलोकन आसानी से कर सकते। यही बात हमने यूनिवर्स और ब्रह्मांड के बारे में जानते वक्त लास्ट टाइम की थी। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ टू द एग्जिस्टेंस हाल ही 25 से 40-50 लाख का एक छोटा स्पैन है यूनिवर्स के बड़े स्पैन में। बट इस बड़े स्पैन में भी इंसान ने जो हासिल किया वो उसके मस्तिष्क का विकास है, और वो मस्तिष्क का विकास उसके क्यूरियोसिटी से ज्यादा उसके हार्डवर्किंग, सिंसियर, डेडिकेटेड नेचर का हिस्सा। माँ बाप जब बच्चों में ये गुण नहीं ला पाते, सरकारें जब बच्चों में ये चीज नहीं ला पाती, तो आगे जाके उस देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा। ये सब हमने जाना, ये मैंने पिछली बार बोला था, आज ये बताने का समय नहीं है क्योंकि लोग कम है। ये है हमारा थीम आज का, इंजीनियरिंग फॉर हेल्दी प्लैनेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक स्लाइड ये सब बताने के लिए सफिशिएंट है कि एग्जैक्टली हम करना क्या चाह रहे हैं। आई विश या अर्थ बोल रही है, हमारा प्लैनेट बोल रहा है, द ओनली ग्रीन डॉट इन सोलर सिस्टम एंड टू द नोन यूनिवर्स ऑफ ह्यूमैनिटी कि भाई आई विश मोर पीपल केयर अबाउट मी मीन्स अर्थ एज मच एज दे केयर अबाउट हु दे बिलीव क्रिएटेड। लोग आज भी धार्मिकता, पौराणिकता से ही हर चीज शुरू करेंगे जो इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक टेम्परामेंट की है। तो मुश्किल है कि बच्चों में, यंगर जनरेशन में, भावी पीढ़ियों में ये सोच आए कि भाई मैं किसी जात, धर्म या पुराण का व्यक्ति नहीं हूं, ना उसकी जानकारी से मुझे कोई सरोकार है। मुझे पुराने जनरेशन के एफर्ट, उन्होंने जो फाउंडेशन रचा है, उससे मुझे जो भविष्य के सीमाएं नजर आ रही है वो लांग के मुझे आगे जाए। Not said by me. Albert Einstein said I could foresee much into the future only because I was standing on the shoulders of giants. वो giants कौन थे? कोई पौराणिक कैरेक्टर नहीं था, सारे giants थे, सारे साइंटिस्ट, फिलोसोफर जिन्होंने दुनिया को समझने की कोशिश की। वो कोई अमेरिकन नहीं थे, ब्रिटिशर्स नहीं थे, गोरी चमड़ी वाले नहीं थे, कोई धार्मिकता वाले नहीं थे, वो सारे वो लोग थे। उसमें हिंदुस्तानी भी थे, नहीं तो कोई क्यों बोलता कि द इंडिया इज अ क्रेडल टू द ह्यूमैनिटी। इन वो लोग समझते हैं, सारे लोग समझते हैं कि जो सही है वही सही। उसके लिए हमें डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बैनर लगाने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या किया। समझने वाले समझ ही जाते हैं। आज आप जब एशियन कंट्री की बात करें, चाइना की या जापान की, तो नया रूल है कि शायद प्राइवेट ट्यूशन विल गेट क्लोज। बच्चों को सिर्फ एक अनुमति होगी 5 से 7 घंटे ही पढ़ाने की। ये सरकारी पाबंदी है ताकि वो 5 घंटे बच्चे सही से पढ़े, और पढ़ाई के पीछे जो $1 बिलियन बिजनेस चल रहा है उसको कहीं एक रिस्ट्रिक्शन आए कि एजुकेशन जिससे आदमी बनता है, समाज संवरता है और दुनिया आगे बढ़ती है, उसमें कोई गलत बिजनेस एटीट्यूड न लाए। और हम लगे हुए हैं ऐसी चीजों में जहां हम अभी भी पुरानी चीजों को खोल खोल के उसको जात धर्म से जोड़ रहे हैं। तो बताने के लिए बहुत कुछ है, क्लोजिंग करना तो चाहूंगा। ये सिर्फ एक सोशल नेटवर्किंग के चलते, मैंने एक रिसेंटली एक पिक्चर देखा था, सोशल नेटवर्क मार्क जुकरबर्ग के, ये जो व्हाट्सएप वाला, फेसबुक वाला फंडा है उस पे है। उसमें उसने जब वो फेसबुक का निर्माण कर रहा था तो उसको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, क्योंकि वो कमर्शियल माइंड है, टोटली मनी ओरिएंटेड सोच का ही व्यक्ति इस तरीके से एक सोशल आइडिया को बिजनेस वेंचर में ला सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है।
सही ढंग से पैसे कमाना भी एक अच्छा इंसानी काम है। तो उसमें जब वो रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में ढूंढ रहा था, वो पॉइंट्स बना रहा था, तो उन्होंने सिंगल बनाया, मैरिड बनाया, कॉम्प्लिकेटेड बनाया, इन रिलेशनशिप भी बनाया। आज इंजीनियर डे पे आपको या आपसे मुझे जिस सिंसियरिटी की उम्मीद है एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, देश के लिए एक धरोहर बनने के लिए, मैं ये चाहता हूं कि पूरे इंजीनियरिंग में या पूरे पढ़ाई लिखाई के पीरियड में आपको 101% आपका स्टेटस इन इंजीनियरिंग रखना है, आपके दिमाग में, फेसबुक में नहीं। दिमाग में आपको ये याद रखना है कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टर कर रहे हो, या कुछ अपने जिंदगी के पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड टारगेट डिफाइन कर रहे हो जो आगे जाके आपकी और समाज की और दुनिया की जिंदगी संवरने वाले हैं, तो यू हैव टू बी रियली डेडिकेटेड टू दैट। दैट इज योर लाइफ स्टेटस टिल दोज टारगेट्स आर अचीव। तो ये आप मेरा क्या कहने का मतलब है समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 11th-12th में नहीं चाहिए वो चीजें करने का, बहुत चस्का लग जाता है और वो बात करते हैं कि हम उस संस्कृति से हैं जहाँ ये ब्रह्मचर्य आश्रम था, गृहस्थाश्रम था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब ही ये है कि जब तक आप उस लेवल पे ना आ जाओ कि आप समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए कुछ कर सको, तब तक आपको सारी आपकी जो भौतिक अपेक्षाएं और लालसाएं है उनसे दूर रहना है। इट इज नॉट डिफरेंट देन दिस। यहाँ पे इंजीनियरिंग को आप रिप्लेस आईएएस से कर सकते हो, आईपीएस से कर सकते हो, जिससे भी चाह कर सकते हैं। तो भाई इन द वन पर्सन हु कैन सेव यू इज यू। सो लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आज आप जो भी जितने भी कम ज्यादा लोग यहाँ बैठे हो, मेरी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई एज ए इंडियन, भले आप प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो या कोई साइंटिस्ट हो, everybody feels pride when we successfully complete some missions like a nuclear test, Chandrayaan development, nuclear plant development और कुछ नए तरीके का वैक्सीन डेवलपमेंट, because these all are the shining examples of commitment, self-reliance, indigenous effort in highly advanced and sophisticated technology. And here being indigenous is important. आज अगर इंडिजीनियसली वैक्सीन नहीं बनता तो आज इतना वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो इंडिया में चल रहा है और लॉकडाउन से हम हल्के बाहर है वो नहीं हो पाता। और ये जो इंडिजिनियस डेवलपमेंट है वो देश के नागरिक ही करते हैं। फिर कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई पॉलिटिशियन होता है, आपको इंजीनियर के तौर पे जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग पे काफी इलाबोरेट तरीके से आपको बताया। JRD Tata once said about such one indigenous man called Dr. Homi Jahangir Baba, जिनकी वजह से मेरी रोजी रोटी चल रही है, मैं भी आरसी में साइंटिस्ट हूँ, कि होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा इज अ कंप्लीट मैन, अ साइंटिस्ट, इंजीनियर, अ मास्टर बिल्डर, एडमिनिस्ट्रेटर स्टीप्ड इन ह्यूमैनिटी। ये क्या है? ये है कि भाई जो व्यक्ति जिसने इंजीनियरिंग को जाने से मना करके फिजिक्स चूज किया, बट काम इंजीनियरिंग का ही किया क्योंकि उनको समझता था इंटरेस्ट परस्यू करना अलग बात है, और इंटरेस्ट परस्यू करते वक्त जो ज्ञान आया उसको बढ़ाना और उसको इस तरीके से बढ़ाना है कि समाज का फायदा हो, देश का नाम रोशन हो, देश समृद्ध सुजलाम सुफलाम बन जाए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की हमने बात की, एम आर स्वामीनाथन जी की बात की, जो ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति और हरित क्रांति और स्वामीनाथन जी, इनके नाम हम जब लेते हैं तो जरूरी नहीं कि वो इंजीनियर हो, ये सब लोग उस पर्सनालिटी जैसे है जो होमी जहांगीर भाभा, एपीजे कलाम की थी। आज के डेट पे क्लोजिंग के पहले मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा, ईच वन ऑफ यू शुड डेवलप सच होलिस्टिक पर्सनालिटी कंबाइनिंग ऑफ साइंटिफिक टेम्पर विद अ मॉडर्न आउटलुक। आप शुरुआत कीजिए, मैं शायद रास्ते में पहला व्यक्ति रहूंगा जो आपके सेवा में हाजिर रहूंगा। और इसके लिए ये लास्ट स्लाइड सिर्फ इसके लिए है, इसके बाद कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल। यस, तो ये लास्ट स्लाइड में जो मैंने अभी आपको प्रॉमिस किया कि आप अपना जर्नी टुवर्ड्स गुड इंजीनियर, गुड ह्यूमन एंड द एसेट्स टू द नेशन एंड ह्यूमैनिटी की तरफ शुरू करना चाहते हो, करना ही है, क्योंकि दैट इज आवर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा आद्य कर्तव्य है देश के प्रति और मानवता के प्रति। तो हमारी तरफ से अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, चलो आप कुछ अपना वेंचर बनाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, इनोवेटर बनना चाहते हो, मैं आपको जगह दूंगा, मैं आपको सपोर्ट सिस्टम दूंगा, मैं आपके लिए छोटी मोटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मशीनरी, रिसोर्सेस, आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए तो मैं दे दूंगा, और वो भी मुंबई जैसी माया नगरी में जो देश का फिनेंशियल कैपिटल तो है ही,
बट दुनिया की नजर में भी एक इम्पोर्टेंट शहर। मैं लकीली मुंबई में रहता हूँ, माँ बाप ने थोड़ा बहुत गांव में रहता हूँ, थोड़ी जगह है, तो ये सारी मुझे कोई साथ में लेके जानी नहीं है। मैं जिस तरीके की लाइफ जीता हूँ, जिस तरीके का फैमिली सपोर्ट मुझे है, मैं चाहता हूँ कि इस जगह का आपके फायदे में कोई इस्तेमाल हो। यही सोच के हमने एक हॉस्टल भी बनाया जहाँ पे यूपीएससी या आफ्टर ग्रेजुएशन वाली कोई कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे गेट देना चाहता है कोई, जेआरई, कोई कैट देना चाहता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की पीएससी देना चाहता है, कुछ भी आप करना चाहते हो, आप मेरे घर पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें अवेल कर सकते हो, अकोमोडेशन अवेल कर सकते हो, इंटरनेट फैसिलिटी पा सकते हो, और मेरी तरफ से जितना हो सके वो प्रोफेशनल गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ और भी चीजें मैंने इस लॉकडाउन में शुरू की, जैसे ऑनलाइन टीचिंग चालू किया। सालाना हम लोग नर्सरी से इंजीनियरिंग तक, 12th तक प्रिसाइजली, फिर कुछ बाकी भी चीजें हम पढ़ाते, जैसे जर्मन लैंग्वेजेस, जापानीज लैंग्वेज, ताकि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें मिले। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। आपको कंटेंट राइटर बनना है, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी बाय व्हाट्सएप। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विथ फैसिलिटी टू स्टे विथ मी फॉर 2-3 years। आप मेरे साथ 2-3 साल आराम से मुंबई में रह सकते हो। इतना तो मैंने जो अब तक कमाया है वो समाज के लिए यूज करते करते डेवलप किया है। तो ये सारी चीज इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि आप इंजीनियर हो गए, या आपने एमटेक कर लिया, या आप पीएचडी परस्यू कर रहे हो, तो आप पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए हो। फॉरेन में पीएचडी तक सही मायने में टोटल गाइडेंस उसके मेंटर या उसका जो गाइड है उससे ही आता है। बच्चों का काम होता है, मतलब स्टूडेंट्स का, एस्पायरेंट का काम होता है सिर्फ फॉलो करना, जो बताया वो सिंसियरली, सिस्टमेटिकली, डिसिप्लिन तरीके से अपना इनोवेशन और अपना क्रिएटिविटी ऐड करके गाइड से मान के समझ के चलना। ये पीएचडी तक का हल है। पोस्ट डॉक में या उसके बाद जब आप प्रोफेसर बनते हो तो ये होता है। और इसलिए मैंने वो बीच में बोला कि जब बीटेक वाले बीटेक को पढ़ाते हैं तो दैट्स नॉट अ रियली गुड सिचुएशन। तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि मेरे अपने कुछ विचार है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। नए एजुकेशन सिस्टम से मेरे काफी एक्सपेक्टेशन है, बट नए इंजीनियर से या होने वाले इंजीनियर से, या जो इंजीनियरिंग में या अच्छी पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनसे मेरे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि नहीं बोला तो भी सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे सरकार जो खर्च करती है वो हमारे जैसे टैक्स पेयर से ही आता है। तो जिम्मेदारी आपकी, हमारी सबकी है। मैंने आपसे बहुत कुछ बात की, एक्सपेक्ट भी किया, 1 घंटा बात किया, कुछ गलत बोला होगा तो मुझे माफ कर दीजिए, नहीं तो जॉइन हैंड्स विथ पीपल लाइक अस हु वांट टू मेक यू इफिशिएंट। इंजीनियर है ना, तो इंजीनियर में 2 ये आते हैं, उसमें एक है एफर्ट का और एक है इफिशिएंसी का। ये दोनों भी अच्छी होने के लिए आपके सामने मेरा कांटेक्ट है। आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरे घर पे आने के पहले कंप्लीट कांटेक्ट और कॉन्वर्सेशन होगा तो ही आए। आपके लिए भी कांटेक्ट पॉइंट आपके कॉलेज में एग्जिस्ट करते हैं, बीसीई पटना में, एंड दैट इज मंगलम जी, राजीव कुमार गुप्ता जी और लॉ प्रकाश जी, और अभी विजेंद्र सर से भी मेरा कांटेक्ट हुआ है। सो रियली थैंक यू सो मच। अभी भी आपके कुछ सवाल है तो आई विल वेरी हैप्पी टू टेक, और आप टोटल 12 नंबर बने रहे, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सॉरी 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 सॉरी, मेरे ख्याल से हाँ, ये स्लाइड ही नहीं। आप कुछ, आई एम क्लोजिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंट लिसनिंग। बहुत कुछ बोलने लायक है, आगे बात करेंगे कभी तो फुर्सत से। नाउ विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम योर एंड। Thank you, Takale ji, Sardana ji, for giving so much time for our students and giving some valuable inputs. Thank you very much for the kind words. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks a lot, Santosh, for such a fascinating session. We are very grateful to you for sharing these experiences and your time. Your talk was full of wisdom and it has made us introspect our goals as we join future workforce. We will surely look deep into our thoughts and try to answer the important questions that you have asked.
And just as you said, it is solely our sincerity, dedication, and hard work that can propel our career.